الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو نہ اس وقت کو کہ جس وقت اے اسرائیلیوں تم نے حضرت موسیٰ کو کہا اے موسیٰ ہم ہرگز اتنے تک تیرے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ پس تمہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارے، تم کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اور نہیں انہوں نے ہم پر کوئی ظلم کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس بستی کے اندر جب داخل ہو تو تم جہاں سے مرضی بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، اور اس خاص دروازے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو کیا کر دے، معاف فرما دے، ہم تمہاری خطاؤں کو کیا کریں گے، معاف کریں گے، اور ہم تمہارے اندر محسنین نیکی کرنے والوں کو اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ پس جنہوں نے ظلم کیا، جس قول کا انہوں کو کہا گیا تھا اس کو تبدیل کر کے پس ہم نے نازل فرمایا جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر آسمان سے ایک عذاب کا ٹکڑا۔ کیونکہ وہ سارے کے سارے فسق کرنے والے تھے، گناہگار تھے، گناہ کرنے والے تھے۔ سامعین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر چند ایک انعامات عطا فرمائے ہیں۔ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی توبہ قبول کر لی تو اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اپنے خاص بندوں کو تیار کرو کہ وہ کوہ طور پر جائیں اور میرے سامنے آئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہی جن کی توبہ قبول ہو چکی تھی ان میں سے 70 افراد کو چنا جو اچھے اور انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، گناہوں سے انہوں نے کیا کیا، توبہ کیا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، نہائے دھوئے، روزے رکھے، نمازیں پڑھنے والے، وہ سارے کے سارے جب کوہ طور پر چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر ان کے ساتھ گئے۔ اب رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، اور کلام کرنے کی جو کیفیت مفسرین کرام نے ارشاد فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرماتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی کے اندر ایک سفیدی کا جو نور ہوتا تھا وہ نور چمکتا تھا، اس نور کے چمکنے کی وجہ سے اتنی زیادہ سفیدی ہوتی تھی کہ ایک سفید پردہ سامنے قائم ہو جاتا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کو نظر نہیں آتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں اور اللہ رب العزت کے ساتھ کلام فرما رہے ہوتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو جس وقت یہ سفیدی چھٹ گئی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام فرمانا تھا وہ کلام ہو گیا رب تعالیٰ کے ساتھ، انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ ہم اتنے تک تیرے اوپر کامل ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک کہ ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ رب تعالیٰ کا کیا کر لیں، نظارہ نہ کر لیں، اللہ رب العزت کو دیکھ نہ لیں۔ اب اللہ رب العزت کو دیکھنے کی جو ہی انہوں نے بات کی تو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑک آئی، ایک آسمانی بجلی آئی، اس آسمانی بجلی کی وجہ سے، اس کڑک کی وجہ سے
ये सारे के सारे वहां पर फना हो गए, मर गए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब उनको इफाका आया बेहोशी से, जब आप उठे, हजरत मूसा ने देखा कि वो सारे के सारे 70 के 70 वो मरे हुए पड़े हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की हालत जो है ना बड़ी मगमूम होगी, आप बड़े अफसरदा हो गए। अब रब ताला की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, ए मेरे मालिक मालिक मौला फहलिकुना बिमा फअल सुफाउ मिन्ना, इन बेवकूफों की वजह से तू क्या करेगा, हमें हलाक करेगा। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला की बारगाह के अंदर अर्ज की, ए मेरे मालिक मौला, बनी इसराइल पहले ही मेरे ऊपर ईमान लेकर आने वाले नहीं है, अब जो लेकर आए हैं ये गिने चुने हुए हैं, अगर ये भी मर गए, मैं इनकी लाशें अगर अपनी कौम के पास लेकर गया तो मेरी कौम मुझे ये तंज करेगी, ये तान करेगी कि जो तुझ पर ईमान लेकर आते हैं उनको तू क्या कर देता, मरवा देता, तो वो बाकी भी वो ईमान लेकर नहीं आएंगे, इसलिए तू क्या करे, इनको जिंदा कर दे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश करने की वजह से और उनकी शफात करने की वजह से अल्लामा सादी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा कि वो सारे के सारे हकीकतन मर गए थे, मौत हकीकी उन पर जारी हो गई थी। लेकिन हजरत मूसा की शफात की वजह से और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश की वजह से रब ताला ने इरशाद फरमाया, सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, तुम्हारे ऊपर हमने तो मौत जारी कर दी थी, लेकिन तुम्हें मौत के बाद हमें क्या है, हमने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें दोबारा क्या किया है, जिंदा किया। इस आया मुबारका से मालूम होता है कि अगर कोई बंदा मर जाए, अब मरने के बाद उसकी दोबारा क्या है, हयात हो सकती है कि नहीं, तो इसके अंदर हो सकती है। लेकिन यहां पर एक और भी बात याद रखिए कि अगर कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुदरत दी हो और ताकत और कुव्वत दी हो, तो वो भी क्या है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज के कई मुफ्तियान किराम और कई इंजीनियर्स हजरात वो कहते हैं कि मौत और हयात सिर्फ और सिर्फ क्या है, रब ताला के हाथ में। हम भी यही कहते हैं कि मौत और हयात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, जिसको चाहे वो मार दे, जिसको चाहे वो क्या कर दे, जिंदा कर दे। हाँ, अल्लाह ने जिसको दिया है, कुदरत दी है, कुव्वत दी है, ताकत दी है, तो वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को क्या कर सकता है, जिंदा कर सकता है, और ये कोई बईद बात नहीं। आला हजरत अजीम बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल और मुहद्दिस बरेली ने अपने मायानाज फतावा के अंदर 28वीं जिल्द के अंदर ये बात जिक्र की कि हुजूर गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत अपना बच्चा लेकर आई। उस बच्चे को हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया कि तू क्या कर, इसके तसव्वुफ के मकामात सिखा। कुछ दिन गुजरे, तो कुछ दिन गुजरने के बाद वो जब आई अपने बेटे की हाल को देखने के लिए, तो देखा कि हुजूर गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब आपके सामने एक भुनी हुई मुर्गी पड़ी हुई, वो मुर्गी आप तनावल कर रहे हैं, और उसका बेटा जो है ना वो शोरबा पी रहा है। मतलब क्या है कि वो शोरबा पी कर क्या लागर और कमजोर हो चुका है, और हुजूर गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने भुनी हुई मुर्गी पड़ी है, वो खा रहे हैं। उस औरत ने ये तंज किया कि हुजूर आप मुर्गियां खाएं और मेरा बच्चा क्या शोरबा खाकर कमजोर और लागर हो रहा है। आपका जलाल जोश में आया, आपने फरमाया कि क्या तेरे बच्चे के अंदर ये ताकत और कुव्वत है। आपने उस मुर्गी की तरफ इशारा करके फरमाया, कुनी बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इज़्न से क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो वहीं पर वो भुनी हुई मुर्गी जिसको क्या है काट कर ज़बा करके जलाकर पकाया गया था, लेकिन वो वहीं पर अल्लाह का नाम लेने की वजह से वो क्या होगी, वैसी वैसी खड़ी होगी जिस तरह की क्या थी, पहले ही थी, जिस तरह की वो मौत से पहले थी। तो पता चला कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को क्या दे, कुव्वत दे, ताकत दे, तो इस सूरत के अंदर भी क्या है, बंदा क्या कर सकता है, जिंदा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिए कि अहले सुन्नत वल जमात पर ये एतराजात किए जाते हैं कि ये हुजूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या ये करामात को बयान करते हैं, तो ये सिर्फ महज कहानियां हैं। लेकिन ये कहानी नहीं है, इसको आला हजरत ने जिस इमाम के वास्ते से नकल किया वो इमाम शतरूफी हैं, और इमाम शतरूफी के बारे में आपने ये जिक्र किया कि इसको मीज़ानुल एतदाल के अंदर अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला ने और दीगर मुहद्दिसीन किराम ने जो इमाम है जर तादील के, वो इसको कभी करार देते हैं और सिका और सबत करार देते हैं। जब सिका और सबत करार देते हैं तो सिका की जो रिवायत होती है, उसकी जो हिकायत होती है, वो क्या होती है, काबिल एतबार और मकबूल समझी जाती है और मोतबर समझी जाती है।
आगे रब ताला ने इरशाद फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुम मन्ना व सल्वा। यहां पर एक बात याद रखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आबाई वतन था वो था शाम, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के अंदर चले गए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के अंदर गए तो वहीं से आपकी क्या जुर्रियत क्या होगी, बढ़ने लग गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मिस्र में थे। अब यहीं पर बनी इसराइल का क्या है, उतार चढ़ाव हुआ, नशेब फराज हुआ, सब कुछ बढ़ना चलना, यहां तक 400 साल 350 साल हुआ, 450 साल यहीं पर इनका गुजारा होता रहा। रब ताला की तरफ से हुक्म आया कि ए मूसा, इनको लेकर वापस जाओ शाम के इलाके के अंदर, शाम को क्या करो, जिन पर अमालका ने क्या किया हुआ है, कुव्वत और गलबा पाया हुआ हो, उस शाम को अमालका की कौम से क्या करो, रिहा करवाओ और उसको फतह दिलवाओ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, मेरे रब ने यह हुक्म दिया है कि तुम्हारा जो साबका मुल्क शाम, उसको हमने क्या करवाना है, अमालका से फतह करवाना है, उसको जो गलबा है अमालका का, उसको क्या करवाना, रिहा करवाना है, हम चलते हैं। अब उनके ऊपर ये बहुत बड़ी बात ग्रां गुजरी और मुश्किल गुजरी कि हम कैसे जाएंगे, अमालकियों के साथ क्या करेंगे, जंग किस तरह करेंगे, जिहाद किस तरह करेंगे। बल्कि दूसरे मकाम पर उन्होंने कहा था कि इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, तू और तेरा रब जा, हम तो यहां पर बैठे हुए, हमसे क्या होता, जिहाद नहीं होता। लेकिन आखिरकार वो तैयार हो गए, हम जाएंगे अमालकियों के साथ क्या करेंगे, जिहाद करेंगे और जंग करेंगे। जब वो जंग करने के लिए यहां पर आए तो मकाम ते एक वो वहां पर एक जंगल था जिसके अंदर बयाबानी थी, सहरा था, कोई भी साया देने वाला दरख्त वहां पर मौजूद नहीं था, पानी का कोई सबब मौजूद नहीं था। तो उन्होंने तरह तरह की शिकायतें बनानी थी, उनका पहले ही दिल नहीं था जाने के लिए, लेकिन अब उन्होंने ये शिकायत लगा दी, मूसा यहां पर तो क्या सायादार दरख्त भी नहीं है और पानी की बूंद तक नहीं हमारे पास, हम खाएंगे पिएंगे कैसे, हम किस तरह क्या करेंगे, सायादार दरख्तों के अंदर बैठेंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की तरफ मुंह जब मोड़ा ना तो मालिक ने इरशाद में वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुम मन्ना व सल्वा, ए मूसा आप इनको दिलासा दो, तसल्ली दो कि परेशान ना हो, हम इनके ऊपर क्या कर देंगे, सफेद बादल का साया कर देंगे। अब इतनी लाडली कौम के सायादार दरख्त अगर ना मिले तो बादल उनके साथ क्या है, चल रहे हैं। फरमाया वअंज़लना अलैकुम मन्ना व सल्वा, और अगर तुम्हें क्या पानी की तलाश हो और पानी की प्यास लगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, पानी की सूरत के अंदर मन और सलवा क्या कर दिया, उतार दिया। अब मन और सल्ला की हकीकत और कुव्वत कैफियत के मुतालिक क्या है, उलमा इसके अंदर क्या करते हैं, तरह तरह के अक़वाल करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नुहीना अन तकल्लुफ के पेश नजर हम इसको क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ क्या कर देते, छोड़ देते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मन और सलवा से क्या मुराद। अब रब ताला ने उनके ऊपर ये इतने इनामात और इकरामात किए, लेकिन फिर भी आगे फरमाया वमा ज़लमूना, उन्होंने तो हम पर कोई जुल्म नहीं किया था। मतलब क्या कि फिर भी जो उनकी कमा हक को इत्तिबा करने का जो तरीका था, उन्होंने ये बात नहीं की, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाह करके, फिस्क करके, हमारे साथ क्या है, शरीक ठहरा कर। आगे फरमाया गया वइज़ कुल्ना दुखुलू हाज़िहिल क़रियता, जब उन्होंने अमालकियों के साथ क्या किया, जंग किया। रिवायत के अंदर आता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर जंग करते रहे, लेकिन हजरत हारून 1 साल पहले आपसे वफात पा गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई, हजरत मूसा भी वफात पा गए, अमालिकियों के साथ जंग जारी थी, अमालिकियों को उन्होंने फतह नहीं किया था। फिर हजरत यूशा बिन नून जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी थे, शागिर्द थे, उनके हाथ पर अमालकियों को क्या किया गया, शिकस्त दी गई, उनसे क्या फतह हासिल की गई। शाम को क्या किया, जब फतह कर दिया गया तो अब रब ताला की तरफ से हुक्म आया कि ए इसराइलियों, तुमने अगर बाबे कुब्बा के अंदर या बाबे हित्ता के अंदर, जो बैतुल मुकद्दस के अंदर एक दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर तुम जब दाखिल हो, शाम के मुल्क के अंदर जब तुम दाखिल हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा झुक कर, यानी कि सजदे की हालत के अंदर आजिजाना होकर, मुतकब्बिराना होकर नहीं,
आजिजाना होकर मुतवाज़िआना होकर दाखिल हो और ये कहो, ए हमारे रब तू हम क्या कर दे, हमें क्या कर दे, तू हमें माफ फरमा दे, हम तुम्हारी खताओं को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, और तुम्हें नेकी करने वालों का क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे, यानी तुम्हारी औलादों के अंदर हम नेकी करने वालों को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। लेकिन जब उनको ये हुक्म था कि तुमने क्या करना है, ये कहना है कि तू हमारी गुनाहों को, तो हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को क्या कर दे, माफ कर दे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। जब वो वहां पर दाखिल हुए, अब हुक्म तो यह था कि क्या करें, सर झुकाएं, सजदा करें। रब ताला फरमाता फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, उनको ये कहा गया था कि तुमने ये कहना है उश्तुक अन्ना ज़ुनूबना, तू हमसे क्या कर, हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को क्या कर दे, माफ कर दे। लेकिन उन्होंने हित्ततुन के कौल को तब्दील करके कहा हब्बतुन फी शहीरतिन या का हिंततुन, फरमाया कि उन्होंने यहां पर सर झुकाकर गुजरने की बजाय वो इस्तों की बिना पर गुजरे, यानी कि अपनी सुरीनों को रगड़ कर वहां से गुजरे, और वहां पर उन्होंने ये कहा हित्ततुन की बजाय हिंततुन, ए अल्लाह हमें तू लाल लाल गेहूं अता फरमा, यानी कि हमें गंदम अता फरमा। जब उन्होंने कौल तब्दील कर दिया तो फरमाया फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्जम मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून, हमने उन पर क्या कर दिया, अजाब का टुकड़ा नाजिल कर दिया। हुक्म खुदाबंदी ये था कि सजदा करते हुए गुजरे, आजिजाना और मुतवाज़िआना तरीके से गुजरे, लेकिन उन्होंने आजी को छोड़ दिया, तवाज़ो को छोड़ दिया, अपनी सुरीनों के बल गुजरे। जब सुरीनों के बल गुजरे और हुक्म क्या था कि ये कहें कि हमारी खताओं को तू हमसे जो सरजद हो चुकी है तू माफ फरमा, उन्होंने इस कौल को तब्दील करके क्या कहा, हिंततुन हब्बतुन, हमें तू क्या कर दे, लाल लाल गंदम अता फरमा। फिर रब ताला इरशाद फरमाता है कि हमने उन पर क्या किया, अजाब नाजिल फरमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी क्या की थी, नाफरमानी की थी, और वो बहुत बड़े गुनाहगार हो गए थे। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनामात के साथ साथ ये भी बताया है कि अगर इनामात मिलने के बावजूद बंदा क्या करे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करे, उसकी इत्तिबा ना करे, उसकी ताबेदारी ना करे, तो फिर ताबेदारी ना करने की वजह से बंदों के ऊपर क्या होता है, अजाब भी नाजिल होता है। हक ताला से दुआ है कि हक ताला ने सही मानों के अंदर अपनी ताबेदारी अता फरमाए।